benchmark. Many people are using, especially Tally ERP9 has played a wonderful role in terms of transitioning the business of this country from an earlier taxation era to the GST era. So primarily when the country was undergoing GST, Tally as a company through its product called ERP9 has played a wonderful role. This is my personal opinion, sir. Not just because I have been paid by Tally, but I have seen this on ground. The other point is the size of the change. So there are, I'm sure I have seen hundreds of small changes that has happened in Prime that may not be looking so big, but I just want to quote a small example and then leave the stage to the product team along with me so that we can have the product session. Sometime back, I was talking to a senior person in the industry. He said, I'm talking about cricket. There is a gentleman by the name Rahul Dravid, most of you know. Rahul Dravid is supposed to be one of the world's best standard for batting. But even he has a coach. He has a coach. So my doubt was, this coach, I have not seen him batting. But what will this coach to Rahul Dravid, who is world class in many ways? So he was talking about it, and normally there was a particular shot which Rahul Dravid used to get out. That is a square cut on the side which he used to give catch to the slip player. So then this coach observed that the way he holds the handle of the bat was slightly having an issue, and he changed the holding of the bat with a few centimeters, and from then onwards Rahul Dravid was not getting out to that type of exit. So the point is, there are some minor changes which makes a lot of difference for anyone. And Tally being a product which basically gets constructed because of a user and not because of a buyer. Most of our features doesn't come out to sell. Most of our features comes out because we have got over 2 million official customers. We get information from them. How do we make the life of a user comfortable? How do we make of a person who has already paid us, who has already trusted is comfortable? So this makes fundamental changes in the way we look at the product. So Tally Prime is one such product wherein every minor thing which was very simple is being worked towards making it more and more simpler. So respected chart accountants, my humble request is, you can always say, is it only so much? Or you can always say, look to what precision Tally has looked and make the life of a user so comfortable. I can overall narrative the Prime will promise, Prime will deliver 30 to 40 percentage of efficiency more in terms of the user, in terms of time spent, in terms of his ability to search for information, in terms of his ability to shoot troubles in case it is going to come. So that way, Tally Prime is an ocean. It's a big basket of very minor sharp change which is being brought in so that the user finds the simpler as the simplest. So with this, Deepak, you're okay till now? Yeah, thank you, sir. So what I'll do is I'll request Deepak also be there, and we have got another CA Dimitri also online who's been already started using Tally Prime and he's got hands on it. So we have your own fellow professional chart accountant also to talk to you. We have got Deepak who is an expert. Even I do come from some market and industry. I'm there. So it will be a great constructive upward spiral discussion which I'm hoping to explore Tally Prime and see how all of us can take this chance to get our circle of people, our clients to easily move to Tally Prime, which will be of great use to all of them. Thanks, and over to you, Deepak. Thank you, sir. Thanks for sharing your valuable words and insight to all of us. Yeah, that's my pleasure. And as you said, change जो है that is the only constant thing. और बहुत सारे changes होते आए हैं, हम लोग देखते आए हैं, and some of the changes are truly transformation related to technology. यदि हम कनेक्ट करेंगे तो जैसे पहले हम मोबाइल जो यूज़ किया करते थे, they are small keypad, big keypad, but small screen. But right now there is no keypad on the mobile, and we are delighted to use it because it is a transformation. Sometime back, if you are using Tally in 2000 or earlier 2000, it is DOS-based. But with Windows, Tally has came up with a change with a new Windows-based version as well. You can also use inventory. एक बार जब आपने नया Tally यूज़ करना शुरू किया, नया मोबाइल यूज़ करना शुरू किया, तो you never look back.
से आप कभी फिर जाके उसे नहीं देखते, बिकॉज जो नया चेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, इट कम्स विद मोर इजीनेस टू योर लाइफ, इट कम्स मोर डिलाइट टू योर लाइफ, इट मेक्स योर टास्क easier. And in the same manner, we have also brought and built Teleprime Music. This is altogether a new product. तो आज इससे एक नया एरा शुरू होने वाला है जहाँ पे आप Teleprime को एक्सपीरियंस करें, क्या नए चेंजेस हैं, क्या उसका नई चीज़ें सीखने आने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो Teleprime में हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान रखा है, और ये जो 3 ऑब्जेक्टिव हैं, इट इज सिंप्लीफाई दिस सिंप्लीफाई। जैसा अभी अरविंद सर ने कहा था कि टैली आती है, हम सब लोग यूज करते हैं, जानते हैं, इट इज वेरी सिंपल बट सिंपलेस्ट एप्लीकेशन। और अब जो प्राइम है ये उससे भी ज़्यादा सिंपल होगा, ये हम आपको वादा कर सकते हैं। दूसरा, ये और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आएगा। जो पहले फ्लेक्सिबिलिटी थी, आप जैसे कहीं भी मास्टर क्रिएट कर सकते थे, किसी को प्रिंट आउट करके कहीं भी जा सकते थे, सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी वॉज ऑलरेडी देयर, बट अब प्राइम में और एक नए लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी। और तीसरा, एक नया लुक, एक नया फील। तो अभी तक जब आप टैली को देखते थे, वो लुक से अभी उसका फील अब चेंज हो जाएगा। ऑल टुगेदर न्यू जनरेशन एंड फ्रेश। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ यदि हम Teleprime के फीचर्स को देखें, तो वी हैव सेग्रीगेटेड अमंग दिस 3 एक्सपीरियंस। और इनमें जो पहला एक्सपीरियंस हमने बात किया था, उसमें हम बात करते हैं कि इसका फ्रेशफुल एक्सपीरियंस जो है वो कंपनी स्टार्ट करने से लेकर शुरू हो जाता है। जैसे क्रिएट न्यू कंपनी, क्रिएट मास्टर्स, क्रिएट ट्रांजेक्शंस, तो ये हर एक ऑपरेशन में आपको एक नया एक्सपीरियंस ऑफ प्राइम देने वाला है। नेविगेशन की बात करेंगे तो नेविगेशन में आप कैसे एक रिपोर्ट से दूसरे रिपोर्ट में जा सकते हैं, आप कैसे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, नए शॉर्टकट्स अब आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़र्स के साथ इजीली आप कंपनी में काम कर सकते हैं यूज़र्स के साथ। और यदि टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका एक नया सेटअप है जो खुद को रिपेयर करना चाहता है, या रिमोट एक्सेस है, या ब्राउज़र में आप टेली रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ग्रुप कंप्लीट चीज़ें। तो कई सारी चीज़ें, कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं there in Prime today. But today I'm very happy to share a thought along with my co-speaker, CA Deepak Jain, और उन्होंने ऑलरेडी प्राइम के ऊपर अभी काम किया है, ऑन किया है, और सारे फीचर्स को उन्होंने खुद लाइव करके देखा है, चलाया है। So I request him to share his thoughts, his learning, his experience with Prime with you, so that you will be able to understand the perspective of a chartered accountant Prime कितना इम्पोर्टेंट है, और कैसे और इसका फ्लेवर और एक्सपीरियंस तो अच्छा रहेगा। तो सर मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, आप शेयर करके स्टार्ट करते हैं। थैंक यू दीपक, थैंक यू। आपने वैसे तो काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दी व्हाट इज द टैली प्राइम। टैली का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है व्हाट वी से इज व्हेन वी से इट्स द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। हमने एक्सपीरियंस किया है कि चाहे हम उसमें एनजीओ हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, किसी की भी अकाउंटिंग हो, हमने चाहे इंडिविजुअल एनआरआई में क्यों ना हो, हम सबकी अकाउंटिंग को फटाफट कर देते हैं, सारी रिपोर्ट्स निकाल देते हैं, सब कुछ करता है। एक सबसे बड़ा इसका और फैक्टर है वो है इसकी टाइमिंग। आप बैलेंस शीट से चले और बैलेंस शीट से प्रिंट डाउन करते कौन से लेवल पे चले गए, आपने वाउचर एंट्री चेंज कर दिया, इमीडिएटली सारी रिपोर्ट्स आपकी इंस्टेंटली अपडेट हो गई और वापस आपकी सारी रिपोर्ट्स सारी हुआ। तो जब ये कुछ था, तो जब टैली प्राइम की बात हो रही थी, हमें पता चला था कि हम प्रोडक्ट्स कमी, तो वो एक्सपेक्टेशन और अच्छी हो जाती है। अब आगे क्या आएगा, जैसे अभी सर ने कहा इज ऑनली सो मच, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी आगे क्या आएगा, हम हमें नया क्या मिलेगा। तो वही चीज थोड़े थोड़े मैंने इसमें कुछ सीखी है आपने टैली प्राइम में जो मैंने वर्क किया, और मुझे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगे। इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जस्ट टू स्टार्ट विद। पहले हम कभी दिल्ली जाते थे, नोएडा जाते थे, आई एम फ्रॉम देहरादून, तो जब भी दिल्ली नोएडा जाते थे तो किसी का घर पूछते थे, तो यूजुअली हम किसी से शॉपकीपर से या कोई आसपास जा रहा हो तो पूछते थे ये दिल्ली है या ये कॉलोनी कहाँ है।
धीरे धीरे वो नेम्स और कॉलोनीज याद रखनी शुरू कर दी। यही था हमारा टैली का स्ट्रक्चर। जब हम टैली का फोल्डर बनाते थे तो हमारे पास ऐसे फोल्डर्स बनते थे, हम एक क्लाइंट का फोल्डर बनाते थे, क्लाइंट का फोल्डर बना के हम खोलते थे और अगर हमें कोई टैली कंपनी खोलनी है तो हम उस फोल्डर में जाएंगे, उसके ईयर में जाएंगे और यहाँ से हम उसका पाथ कॉपी करेंगे और पाथ कॉपी करके हम सीधा टैली में सिलेक्ट कंपनी जाके इसे ओपन करेंगे। अब उसके बाद आगे हमारे पास नेविगेशन गूगल मैप हमने यूज करना शुरू करा और मेरे ख्याल से टैली में यूज करना शुरू कर दिया। सो हियर इज अ क्विक नेविगेशन। टैली प्राइम का मैंने एग्जांपल दिया। मैं कंपनी सेलेक्ट करता हूँ एंड हियर माय नेविगेशन स्टार्ट्स। मेरे को उसने बेसिक फोल्डर दिया और जब उसने मेरे को बेसिक फोल्डर दिया आई कैन गो अप अप अप, आई कैन गो टू एनी ड्राइव, I can go to a drill down, I can type, I can go to my any company and just select my company. तो इतना इजी हो गया, अब मुझे कुछ याद नहीं रखना कि मेरा डेटा कौन से फोल्डर में है, कहाँ है, कैसे सेव है, इसमें ठीक है, there has to be a discipline, but at least the Tally is allowing me to search right over here. फोल्डर है तो फोल्डर का नाम आ गया, उसके अंदर कुछ डेटा है, आई कैन गो टू डेटा, आई कैन जस्ट गो एंटर। कोई दिक्कत है बैक स्पेस करें, हालांकि दिस इज अ काइंड ऑफ अ नेविगेशन जो बहुत बढ़िया टूल है। अभी टैली प्राइम में आया, इससे पहले मैंने इसका यूज किया। मुझे लगा एक ये फीचर ऐसा है जिसको हम शेयर कर सकते हैं जो टैली प्राइम में यूजर फ्रेंडली काइंड ऑफ है। So this is basically navigation feature which I picked from one of the feature navigating the Tally company. एक फीचर पहले भी था, बहुत टाइम से था, हमारा ग्रुप का। बट मेरा जब भी इंटरेक्शन हुआ मैक्सिमम टाइम मुझे ये लगा कि ग्रुप कंपनी बहुत सारे मेंबर्स या अकाउंटेंट क्लाइंट्स करते हैं। अब वो होता क्या था कि हमें टैली याद की और उससे पहले वर्जन में पहले सारी कंपनी से सिलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करते थे, फिर हम उसको एक साइड में एक ऑप्शन आता था क्रिएट ग्रुप का। अब हमें डायरेक्ट ऑप्शन एक यहाँ मिलता है व्हेनेवर मैं सर अभी मेन्यूज पे बाद में आऊंगा, आजकल थोड़ा सा मेन्यू पे सॉफ्टवेयर होते जा रहे हैं, मेरे को लगा कुछ अच्छी फंक्शनैलिटीज है, पहले मैं उसको डिस्कस करूं। तो हम गए, हमने कहा सर कंपनी क्रिएट करनी। एज सुन एज आई गो टू अ क्रिएट कंपनी, सब कुछ सेम है, थोड़ा सा चीजें कम हो गई, थोड़ी ज्यादा। राइट हैंड साइड में मेरे को क्रिएट ऑप्शन मिला था। आई सिलेक्टेड ग्रुप कंपनी, तो जो मेरी ट्रेडिशनल स्कीम थी मुझे याद आ गई, मैंने सेलेक्ट करा ओके आई वांट टू मेक कंपनी का नाम दिया, उसके मेरे पास 2-3 यूनिट्स हैं मेरे पास एंड इट जस्ट गिव मी द मेंबर कंपनीज, कितनी मेंबर कंपनीज आपको बनानी है। ये था सारा फीचर पहले भी था। अगेन अवेलेबिलिटी उसकी अ काइंड ऑफ अ हिडन, वेरी रेयर मेंबर्स वर। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने कहा दूसरी कंपनी मुझे सेलेक्ट करनी है, आई जस्ट वेंट टू सेलेक्ट कंपनी। किसी भी लोकेशन में मेरी दूसरी कंपनी हो, आई कैन सेलेक्ट। मैंने कंपनी सेलेक्ट की और मेरी यहाँ एक ग्रुप कंपनी बेनिफिट मैक्सिमम मेंबर्स को पता है व्हाट इज द बेनिफिट। मेरे को ग्रुप कंपनी मतलब कि मैं 2 यूनिट्स का सारा डेटा कंसोलिडेट करके देखता हूँ, सारे फीचर्स इसके कंसोलिडेट करके देखता हूँ। मेरे को अगर प्रॉफिट एंड लॉस करना है, सारे स्टॉक फिगर्स क्या है, सेल्स फिगर्स क्या है, तो एक कभी हम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल भी बनाते हैं, प्रोविजनल फाइनेंशियल बनाते हैं महीने के 2-3 यूनिट्स का कंसोलिडेट करते हैं एक्सेल पे। तो एक अच्छा फीचर मेरे को याद है कि मैंने इमीडिएटली कंसोलिडेट कर दिया। कंसोलिडेट करने के बाद इसमें बहुत सारे कंपैरिजंस भी मिल जाते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटेल ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ और हमें साथ साथ कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ द एंटायर डेटा देखने। ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा कि काइंड ऑफ अ पोर्ट्रे कर दिया कि भाई हम ये यूज करें, अभी तक ये हिडन था। और ग्रुप कंपनी का क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब भी आप कंपैरिजन करते जाएंगे एक्सपेंसेस का, किसी भी चीज का, तो आपको बहुत अच्छी टैबुलर डेटा बना देगा। थर्ड पॉइंट, दीपक जी अगर आपको लगे कि आपको कुछ और चीजें ऐड ऑन करनी है तो प्लीज डू इंटरफियर। तो जैसा पहले
आपने सबसे पहला बताया दैट इज नेविगेशन टैली कंपनी। आई थिंक ये पाथ जो ड्राइव सिलेक्शन वाला पाथ है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्रोफेशनल्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे आपने शेयर किया कि हम अलग अलग ईयर वाइज फोल्डर बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, डेटा रखते हैं और उनको हमें हर बार स्विच करते रहना पड़ता था। विंडोज में जाके ढूंढ रहे हैं और ढूंढ के फिर यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। नाउ अब आपको टैली से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। टैली प्राइम में ही आप सिलेक्ट कंपनी और वहीं से आप अपने मेनू को यूज करके और आप फटाफट किसी भी फोल्डर में, और कई बार फोल्डर के अंदर भी फोल्डर होता है तो वो फोल्डर भी हमें दिख जाता है और वो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर भी एक फोल्डर है, उसमें भी कोई कंपनी हो सकती है। सो द एंटायर एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा पार्ट वो आपको विद इन टैली अब आपको मिल जाएगा। तो आपको टैली से बाहर जाके विंडो एक्सप्लोरर ओपन करके और इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन मूव एनी ड्राइव एनीवेयर एनीथिंग और इजीली आप उसको लोकेट कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है सर, जब हम फ्रंट पेज पे होते हैं जहाँ हमारा लिस्ट ऑफ डेटा सिलेक्ट होता है, वहाँ पे भी कंपनी के नंबर के आगे आपको उनका स्टेटस दिखाई देगा। ये माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप स्टार्ट करेंगे माइग्रेट करना क्लाइंट के ऊपर और आपके क्लाइंट्स हो सकता है कुछ माइग्रेट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो डेटा आपके पास आपके ऑडिट के लिए या जीएसटी फाइलिंग के लिए अलग अलग पर्पज के लिए आता है। तो वो डेटा आप जब डंप करते हैं आपके कंप्यूटर में और आप जब उसको सिलेक्ट करने जाते हैं तो अपफ्रंट ही टैली खुद से चेक करके आपको बता देगा कि भाई ये पुराना डेटा है, इसको माइग्रेट की जरूरत है, या वो डेटा करप्टेड है, उसकी फाइल में कुछ गड़बड़ है, उसमें रिपेयर करने की जरूरत है, तो वो रिपेयर आपको इसमें एक और भी मार्क आता है सर। अभी आपके पास वो सिनेरियो नहीं है, बट मान लीजिए कि टैली प्राइम के नए वर्जन आएंगे और आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं और आपके पास हायर वर्जन का डेटा आ गया, तो वर्जन मिसमैच का भी आपको नोटिफिकेशन या उस तरह की आपको। तो अब आपके लिए ओपन करने से पहले ही आपको पता रहेगा कि यहाँ पे आपको उसका स्टेटस क्या है, डेटा माइग्रेट क्या है, और हेल्प ऑन। और जो दूसरा आपने ग्रुप कंपनी के बारे में बताया, इट इज वेरी वेल डायरेक्टेड सर। आपने सही कहा, हमारे कई सारे टीचर को नहीं जानते हैं और जानते भी हैं, ये पता है कि थोड़ा सा प्रोसेस में था और उसको डिस्कवर करना इतना आसान था। बट नाउ टाइम है गिव इट एक्सक्लूसिविटी एंड डिस्कवरेबिलिटी कि आप जब क्रिएट कंपनी कर रहे हो वहीं पे ग्रुप कंपनी दिख गया, आप जो कंपनी को मेंबर बनाना चाहें आप सिलेक्ट करके इवन इट इज अवेलेबल ऑन मल्टीपल पार्ट, जो एक आपका हार्ड ड्राइव पे है, एक आपका पेन ड्राइव पे है या आपके पॉकेट ड्राइव पे है, यू कैन कनेक्ट इट एंड यू कैन मेक अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल कंपनी। So this is also a very easy process, discoverable process for users. Thank you. तो ये चीज अच्छी लगी हमें। एक हमें और भी अच्छा पॉइंट मिला इसमें, दैट वाज मास्टर रिलेशन। मास्टर रिलेशन यूजुअली पहले हर कंपनी में होता ही है। जो हम जानते हैं हमारे पास जब भी हम टैली क्रिएट करते थे तो हमारे पास कंपनी क्रिएट करते हुए सबसे टॉप मेन्यू आता था अकाउंट इन्फॉर्मेशन का, यहाँ होता था मास्टर क्रिएट करते थे। बट समहाउ मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी जब इसको रिसर्च कर रहा था मेरे को लगा कि मैंने कुछ चीज़ें देखी है, मैं बैलेंस शीट रिव्यू कर रहा हूँ, बैलेंस शीट रिव्यू करते हुए मुझे को ऐसी फीलिंग आई क्या पता इसमें टीडीएस इनेबल्ड है या नहीं है, और मेरे को जस्ट सर्च कर रहा था। सो आई जस्ट वेंट टू मास्टर क्रिएशन और मैंने इसमें ऊपर देखा यहाँ मेरे को एक क्रिएट मास्टर का ऑप्शन मिल गया। जैसे ही क्रिएट मास्टर का ऑप्शन मिला मैंने जस्ट क्लिक किया एंड समथिंग और भी मिल रहा है, कह रहे कुछ और भी दिख रहा है, शो मोड। एज आई प्रेस शो मोड देयर इज अनदर बटन शो इनएक्टिव। सो ये सारी चीजें अभी तक कहाँ थी, ये कहीं ना कहीं गाइडेड बाय हिडन F11 F12 जब हम इसे कहते थे कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ कहीं ना कहीं ये फिट थी। मैंने जैसे शो इनएक्टिव पे किया मुझे पता चल गया कि मेरे टैली पे क्या क्या चीजें डिम है। डिम मतलब बेसिकली कि मैंने इनेबल ही नहीं करी है। मैंने कॉस्ट सेंटर कंसेप्ट इनेबल नहीं करा। मैं नीचे जाता हूँ, मैंने टैक्स रिप्लेस बैड क्लासिफिकेशन इनेबल करा, तो ऐसे अगर मुझे कोई चीजें इनेबल करनी है राइट अवे मेरे को कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं कि आई जस्ट वेंट टू कॉस्ट सेंटर एंटर, वो मुझसे कहेगा डू यू वांट टू इनेबल, यस, और मैंने यहाँ से कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो ये एक जो लोग बहुत ट्रेडिशनल अकाउंटेंट हैं जो
करते आए हैं उनको पता है कि मेरे को ये फीचर्स कहाँ इनेबल करने होते थे। मेरे पास साइड में राइट हैंड साइड में 2 बटन अवेलेबल होते थे, F11 और मैंने उसमें जाके मैं उनको इनेबल करता था और फिर उसके बाद मैं अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में जाके कॉस्ट सेंटर्स क्रिएशन में जाता था। अब वो सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल है मेरे पास और मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आई कैन आइडेंटिफाई कि मेरे पास कौन से मास्टर्स एक्टिव हैं, कौन से इनएक्टिव। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। वेरी गुड सर। तो ये भी एक रिवोल्यूशनरी चेंज है टैली प्राइम में, आई कैन से इन माय वर्ड्स। तो पहले जो नए फीचर्स आपको एनेबल करने होते थे, जैसे आपको प्राइस लिस्ट मेंटेन करना है टैली में, या फिर आपको गोडाउन मेंटेन करना है, या आपको फिर अकाउंटिंग स्किल पे कुछ फीचर यूज करना है, तो ऑल दोज वर लिस्टेड इन F11 फीचर्स। हम सब लोग जो टैली एक्सपर्ट हैं, टैली यूज करते हैं, थोड़ा बहुत सब जानते हैं। बट F11 में जाके देयर विल बी अ लिस्ट जिसमें आपको ढूंढ के देन टू एनेबल एंड देन कम बैक एंड स्टार्ट दिस। नाउ प्राइम हैज गिवन ऑल टुगेदर अ न्यू एक्सपीरियंस ऑफ केबल, जहाँ आप केबल में काम करते समय वहीं पे आपको दिख जाएगा कि कौन से मास्टर्स हैं जो एक्टिव नहीं है, एनेबल नहीं है, और आप यहीं से उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक नए यूजर के नज़रिए से बात करते हैं, तो आप यदि टैली को नया नया इस्तेमाल करना शुरू किया है आपने, या अब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो you would be able to see the hidden features. I can say hidden because उसका अवेयरनेस नहीं पता, तो अभी वो दिखना शुरू हो जाएगा। आपको सिनेरियोज नहीं पता, क्योंकि हम टैली को कास्टिंग भी कर सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो सिनेरियोज यू कैन डिसाइड। सो दिस इज अगेन अ बिग चेंज टू एक्सपीरियंस। ये सब सबसे करता के लिए जो कंपनी 2-3 साल नए हमारे मेंबर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जिससे जुड़े आए हैं, वो कई बार जो यूसेज नहीं होता है, डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आएगी तो वो ढूंढ लेंगे, फिर वैसे यूज नहीं होता तो उन्हें पता भी नहीं होता उस सेटअप में आएंगे। सो उनके लिए बहुत डायनामिक, व्हाट आई स्टार्टेड इनिशियली डायनामिक, आप कहीं से भी कहीं आपको पता है व्हाट इज बेसिकली योर सो एक मुझे लगा इसलिए मैंने मास्टर एडिशन कवर किया। एक बहुत बड़ा हर्ट है तो मैंने बीच में रखा हुआ है, उसको भी कवर भी कर रहा हूँ, मेरे पास है ये, तो आपसे एक बड़ी अच्छी चीज ला के दी है और शायद काइंड ऑफ हमें हैंडीकैप भी बनाने की कोशिश कर रहे हो आप, ताकि लेट्स सी कि हम उसको कैसे यूज करेंगे। लेकिन बट इसको कवर करने से पहले मैंने सोचा एक दो चीजें और कंपनीज हेल्थ आपने कवर कर ली है, ठीक है, डिटेल है देखा। तो वी हैव वन सिंगल साइन ऑन। अब सिंगल साइन ऑन मतलब मैंने इसे नाम क्यों दिया सिंगल साइन ऑन? कई बार क्या होता है कि अब जब से एनवायरमेंट जीएसटी का आया है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं हमारे, उनके ऑफिस में डायरेक्टली जीएसटी के असाइनमेंट्स आने शुरू हो गए। कुछ का डेटा हमारे पास आता है क्लाइंट्स का, कभी कभी अकाउंटिंग प्रोफाइल भी हमारे पास होती है, हम कहते हैं कि अकाउंटिंग का जीएसटी कंप्लायंस मेंटेन करते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हमारे पास डेटा एंट्री या हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एंट्री पर या हम उन्हें यूजर क्रेडेंशियल्स दे देते हैं कि भाई आप एक डेटा एंट्री कर देना, लेकिन आपको हम मॉडिफिकेशन की पावर्स नहीं देंगे, क्योंकि देयर इज अ चांस कि मैंने सपोज जुलाई तक की रिटर्न फाइनल कर दी थी और आज मैं अगस्त की फाइनल कर रहा हूँ, बाय मिस्टेक एनी ऑफ द यूजर कैन गो एंड चेंज सम जुलाई डेटा। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम अपने ऑफिस में अकाउंट्स को, डेटा एंट्री स्टाफ को, हम उसके यूजर आईडी पासवर्ड पे कुछ लिमिटेशन लगाते हैं। जब वो यूजर आईडी पे लिमिटेशन लगाते हैं तो क्या होता है कि हम उनका पासवर्ड अलग कर देते हैं, अपना अलग कर देते हैं। लेकिन अब हमें पता है कि आज की डेट में हर चीज पासवर्ड ओरिएंटेड है, हर जगह पासवर्ड है, तो टेंटेटिव है कि हम कभी कभार भूल भी जाते हैं, या हम फिर करते क्या करते हैं, अपने पासवर्ड स्टाफ को दे देते हैं कि तुम इसके इस्तेमाल। आपने थोड़ा सा डिस्कस किया था पहले हमसे एक बार। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने एक कंपनी बनाई, बहुत इंटरेस्टिंग था ये, जो बेसिकली हम क्रोम पे भी करते हैं कि अपने पासवर्ड अकाउंट का सेव करते हैं। मैं जस्ट कंपनी को बंद करता हूँ। This company, my demo company has password. I just kept one password. ये मेरी कंपनी खुली, ठीक है। अब मेरे को इसका ज्ञान है और मैंने सपोज यही पासवर्ड कुछ और कंपनी के लिए रखा हुआ है जिनको मैंने ये क्रेडेंशियल्स नहीं दे रखे, अपने स्टाफ को क्रेडेंशियल नहीं दे रखे, मुझे बार बार वो पासवर्ड याद नहीं रखना। तो व्हाट आई डिड इज, कंपनी सिलेक्शन में गए, कंपनी सिलेक्शन में जाते ही मेरे को जो कंपनी सेलेक्ट करनी है मैं उस कंपनी में जाऊंगा और वो मेरे को
पासवर्ड का प्रॉम्प्ट अभी कर रहा है क्योंकि इसमें पासवर्ड है। अब मेरे को सपोज पासवर्ड नहीं डालना, आई सिंपली गो टू जस्ट so we have one good feature over here, enable auto login for companies with the same credentials। तो मुझे नहीं पता मैं इसको कहाँ कहाँ यूज कर पाऊंगा, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने इसको इनेबल कर दिया। ठीक है, जो भी इस क्रेडेंशियल्स से कंपनी होगी वो ऑटोमेटिकली लॉगिन होगी। एंड आई जस्ट स्टार्टेड, मैंने अपनी डिफॉल्ट कंपनी खोली, इसमें मैंने वन टाइम क्रेडेंशियल्स दिए, क्योंकि मेरा वो फीचर ऑन है। उसके बाद मैं जो भी कंपनी खोलता हूँ उसी फीचर से वो मेरे को पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट। देखिए अभी रिया इंडस्ट्रीज में पासवर्ड पूछ रहा था और अब उसने पासवर्ड नहीं पूछा, क्योंकि इसकी सेटिंग्स में मैंने जाके एक वो इनेबल ऑटो लॉगिन का फीचर इनेबल कर दिया। सो इसमें मुझे लगा कि हाउ कैन आई कोरिलेट बेसिकली कि मेरा जो पासवर्ड है वो मैंने एक कंपनी में मैंने सेलेक्ट करके छोड़ दिया माय कंपनी में, और उसके बाद जितनी कंपनी में खोलूंगा वो किसी कंपनी में वो पासवर्ड नहीं पूछेगा, और ये पासवर्ड मुझे अपनी टीम मेंबर के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। बाकी के बाकी आप बताएं इसका और क्या बेनिफिट हो सकता है। दिस इज द मोस्ट मुझे लगा कि ये काइंड ऑफ मैं शेयर करूँ। बिल्कुल सही था सर, और ये मोस्टली मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि प्रोफेशनल्स या जो भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके क्लाइंट्स के कंपनी के डेटा होते हैं और कई बार उसमें मैक्सिमम अथॉरिटी आपके पास ही होती है। तो most of the कंपनी टाइप का डेटा आप ही के पास रहता है, तो ऑपरेट करते हैं या आपके ऑफिस में आपके स्टाफ में लोगों को उन पे काम करना होता है, एक साथ करना होता है। वो एक ही ग्रुप की 5-5 10 कंपनियां हैं, उनमें तुरंत इसमें कभी काम कर रहे हैं, कभी उसमें काम कर रहे हैं। एंड कई बार हम पासवर्ड एक्टिवेट भी नहीं करते हैं, डालते भी नहीं हैं, और उसका कारण ये शायद हमें पता नहीं कि उसका यूजेज क्या है। जस्ट टेक इट कि सिर्फ पासवर्ड हम सिक्योरिटी के पर्पज से डाल रहे हैं, तो उसको कोई ओपन ना कर सके, बट उसके कई सारे यूजेज हैं ऑन अ बेसिस ऑफ कंट्रोल। जैसे आप ऑडिट में जानते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप पासवर्ड डालते हैं और आप टैग के डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, तो यू कैन टर्न ऑन अ फीचर कॉल्ड टैग ऑडिट, और उसको एनेबल करने के बाद आप आपके यूजर्स के एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं, किस यूजर ने क्या डेटा एंट्री डाला है, किसी ने क्या करा है। कई सारे लोग उस फीचर को जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से यूज भी करते हैं। उस केस में जब मेरे पास यूजर में पासवर्ड डले हुए हैं कई सारी कंपनियों में और मुझे एक साथ मल्टीपल कंपनी में काम करना है बार बार, तो उनको लोड करना विल बी ए टाइम कंज्यूमिंग पार्ट यदि आप बार बार लॉग इन करें। और आपने एग्जाम्पल में बहुत सही कनेक्ट किया। जैसे अभी जब हम किसी भी वेब लॉग इन करते हैं, वो पूछता है कि इसके पासवर्ड को क्या आप सेव करना चाहते हो ग्रुप के साथ, या आप उसको रिमेंबर रखना चाहते हो। तो आपका पर्पज ये होता है कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम अपने सिस्टम पे लॉग इन करेंगे तो एक रिमेंबर्स कि आप लॉग इन कर रहे हो, तो आपसे बार बार नहीं पूछेगा, इट सेव्स योर टाइम। The same thing has been incorporated here कि आपने एक बार एक कंपनी लोड किया और उसमें यदि पासवर्ड एक सेम है और नेक्स्ट कंपनी आप जो लोड कर रहे हो उसमें भी वही यूजर में पासवर्ड है, तो डायरेक्ट बिना आपसे पासवर्ड पूछे उसको ओपन करेगा। एंड कैन कीप दिस डूइंग कंटिन्यू विद एन नंबर ऑफ कंपनीज। मान लीजिए कि कुछ सेटअप कंपनी है जिनमें अलग पासवर्ड है, तो जब आप फर्स्ट टाइम उसको खोलेंगे उसी सीक्वेंस में तो वो पूछेगा, और उसके बाद अगली कंपनी में भी वो फिर पूछना बंद कर देगा। तो दिस इज दी ब्यूटी ऑफ टेली प्राइम कि आप जो सिंगल साइन ऑन नंबर है जिसमें आप मल्टीपल कंपनीज में विदाउट एंटरिंग मल्टीपल टाइम्स यूजर लॉगिन्स आप इजीली लॉग इन कर सकते हो, ओपन कर सकते हो और ऑपरेट कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू सेव ह्यूज एफर्ट्स एंड टाइम, और साथ में आप सिक्योरिटी भी एनेबल करके रख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो टाइम तक। तो इट्स वेरी गुड फीचर सर, थैंक यू सर। बिफोर मूविंग है वहाँ पे बेसिकली वैसे तो पॉइंट्स काफ़ी सारे थे, बट मुझे लगा कि इनिशियल फर्स्ट सेशन ज़्यादा हो जाएंगे। सो यहाँ पे अब प्राइमरी दो है, गो टू एंड ऑडिट एनालिसिस। ऑडिट एनालिसिस एक आर्किटेक्ट चैप्टर है। हमारे पास क्लाइंट का डेटा आता है, कभी कभी हम क्लाइंट फील्ड में जाते हैं ऑडिट के लिए, और वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम 90 to 95% आई कैन से हमारे पास क्लाइंट्स का डेटा टैली पे ही होता है। और जब टैली पे होता है तो हमें ऑडिट के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। ऑडिट अगेन इट्स नॉट ओनली ठीक है मैंने कर दिया, मेरे को उसके डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करनी है, मेरे को टीम वर्क को भी मॉनिटर करना है, मेरा ऑडिट प्लान
होता है और टैली पे ये पहले से काफी पहले से चीजें थी। बस अगेन वही चीज है, जैसे हमने कहा कि ग्रुप कंपनी जो है, ग्रुप कंपनी कहीं ना कहीं अ काइंड ऑफ अ हिडन थी, ऐसे ऑडिटर एनालिसिस भी अ काइंड ऑफ अ टैली पे हिडन था। वर्केबल तभी था जब आप इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल करेंगे। अगर सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं इनेबल करेंगे तो अवेलेबल नहीं है। इनिशियल दीपक जी मुझे करेक्ट कर देगा, इनिशियल एक बार जब ये लॉन्च हुआ था तो शायद सिर्फ ऑडिटर वर्जन के लिए लॉन्च हुआ था, ऑडिटर एनालिसिस, और फिर बाकी यूजर्स के लिए अवेलेबल किया गया। बिल्कुल exactly। सो मैं जो हूँ अब ऑडिट एनालिसिस और GoTo फीचर को मैं इकट्ठा यूज करूंगा। व्हाई आई एम सेइंग GoTo, GoTo बेसिकली मुझे जो लगा, GoTo आपने गूगल से ले लिया, ठीक है। पहले हम कुछ चीजें ढूंढा करते थे, आप इधर डिक्शनरी उठा लेते हैं, अब हर चीज जो होती है हम गूगल पे जाते हैं। आज की डेट में कई बार बुक्स नहीं उठाते और कुछ हमें लॉ ढूंढना है, कुछ बेसिक ढूंढने होते हैं, हम गूगल से टाइप करते हैं। सो ये ब्यूटी आप ले आए, और मैंने शायद पहले सेंटेंस में आपसे यही कहा था कि आप हमें खराब कर देंगे, हमारी मेमोरीज खराब कर देंगे। नए जनरेशन के लिए बहुत अच्छी है। लेट्स सी, मैं कोई बैलेंस शीट रिव्यू कर रहा हूँ, मैं डेटा एनालिसिस पे हूँ, डेटा पूछता हूँ, तो मैं कुछ डेटा रिव्यू कर रहा हूँ, मैं गया हूँ, मैंने कहा चीजें कुछ डेटा स्लिप करते हैं, डेटा स्लिप करते करते मैं लेक्चर वाली किया, मेरे पास रिपोर्ट्स आती हैं, यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शन नए नए आए हैं, इजी है, डायनामिक है, मेरे को बिल वाइज रिपोर्ट्स देखनी है, मैं बिल वाइज पे चला गया, कहीं ना ये चीजें हिडन थी, चेंज व्यू है मेरे पे। सो मैंने सडनली कहा मेरे को एजिंग एनालिसिस देखना है, और यहाँ मेरे पे बहुत रेयर, मतलब अब क्योंकि हम यूजुअली ये फीचर यूज करते हैं तो हमें पता है कि हम एमएसएमई के लिए कैलकुलेशन करनी है या कहीं और देखनी है, तो हमें ये देखना होता है कौन से बिल्स आउटस्टैंडिंग है, कौन से नहीं है। मेरे को अब तक बहुत सारे मेंबर्स को या अकाउंटेंट्स को नहीं इजीली पता होता था कि फीचर्स है। मैं सिर्फ यहाँ GoTo पे गया, ठीक है। अब मैं दोनों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। अब मुझे क्या चीज ढूंढनी है, मेरे को ढूंढना है कि मेरे बिल्स टेबल की। अब देखिए जैसे ही मैंने बिल्स टेबल लिखना शुरू किया, उसने मेरे को बिल्स से रिलेटेड पूरे टैली पे जहां जहां कुछ बिल्स होगा, बीइंग द लेजर रिपोर्ट, स्टॉक आइटम रिपोर्ट, सेल्स ट्रैकिंग रिपोर्ट, परचेज ट्रैकिंग रिपोर्ट, उसने सब जोड़ के लाके देना शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्स टेबल पे चला जाऊँ। तो अभी गूगल वाली फंक्शनैलिटी मिल गई मेरे को आपके GoTo में, ठीक है, और मेरा बिल्स टेबल की रिपोर्ट आ गई। फिर मैं काम कर रहा था, मैंने कहा ठीक है, मेरे को बिल्स टेबल की रिपोर्ट आ गई, मेरे को इसकी एजिंग देखनी है, और मेरे को एमएसएमई कंप्लायंस के लिए देखो जो जिस भी थर्ड कंप्लायंस के लिए मेरे को 45 डेज 90 डेज मैंने इसका एजिंग का डेटा निकाल लिया, और मैंने इसको फिर से किया क्लिक, और मेरे को एजिंग एनालिसिस पूरा पार्टी वाइज सामने मेरे को अवेलेबल हो गया। मैं एक एक पार्टी का एनालिसिस कर सकता हूँ कि मेरे कौन से बिल्स मुझे पे करने हैं और मेरी एजिंग क्या है, ठीक है। सो अगेन पहले भी था, टैली पे सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सर्च करना पड़ता था। जो एडवांस यूजर नहीं थे उनको शायद ये फंक्शनैलिटीज नहीं पता थी। अब एक ब्यूटी किसी यूजर की GoTo की क्या है, मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ और सडनली मुझे कुछ फिक्स का एनालिसिस देखना है, या अपने टीम मेंबर है, मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ, मुझे अपने टीम मेंबर को याद आया कि मुझे फिक्स का एनालिसिस प्रिंट कर दूँ सो दैट वो उसमें कुछ काम करके टाइम। मैंने यहीं से GoTo में गया और मैंने करा फिक्स एनालिसिस। मेरे को अपनी बिल्स पेबल रिपोर्ट से कहीं बाहर नहीं आना था। ये टैली का पहले फीचर था कि आपको किसी एक रिपोर्ट पे हो और दूसरी रिपोर्ट पे आपको जंप करना है, तो आपको एस्केप दबाते 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 सबसे गेट पे ऑफ टैली पे आओगे, और जब बाहर गेट पे आ जाओगे और फिर दोबारा आपको सोगे रिपोर्ट पे जाना था। तो अब यहाँ मेरे को एक बेनिफिट मिल गया कि आई कैन गो टू फिजिक्स एनालिसिस डायरेक्टली वन हियर, और मेरे पास ये फिजिक्स एनालिसिस आ गया, डेज आ गए, ओपनिंग बैलेंस एडिशन आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस रिपोर्ट को अपने टीम मेंबर को या तो मेरे को प्रिंट देना है या मेल करनी है। जब मैं प्रिंट दे रहा हूँ और प्रिंट देते हुए मुझसे पूछ रहा है कि आपको करंट रिपोर्ट जो सामने दिखाई देती है ये प्रिंट करनी है या कोई और रिपोर्ट प्रिंट करनी है, मैंने फॉर द टाइमिंग अपने आप को लिमिट करा कि नहीं, मुझे यही रिपोर्ट प्रिंट करनी है। मैंने उसको रिपोर्ट प्रीव्यू में देखा, प्रिंट कमांड दी, और मैं एस्केप करके बाहर आया। जैसे ही मैं एस्केप
मुझे दोबारा से इस स्क्रीन को रिक्रिएट नहीं करना। अभी सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या था, मैं जिस स्क्रीन पे काम कर रहा होता था, एनालिसिस करता था, और सडनली मुझे कुछ और काम करना है टाइम पे, या तो मेरे को एक और टैली खोलना पड़ता था, ठीक है, यहाँ से एस्केप करके मेरे को बाहर आना पड़ता था। सबसे पहले बाहर गेट पे आऊंगा और दोबारा से सही गेट पकड़ूंगा, दोबारा से सही डोर्स पकड़ूंगा मैं, और फिर उस रिपोर्ट पे जाऊंगा। सो दिस इज द नाउ ब्यूटी इसकी आ गई कि जहाँ बेसिकली इसने स्क्रीन्स मेरे को इंटैक्ट देती, मैं जिस रिपोर्ट पे काम कर रहा हूँ वो वहीं हूँ, मैं 1 2 3 कोई भी डिफरेंट काम करूंगा, वापस आऊंगा मैं वहीं हूँ। मतलब इवन आई कैन पास अ वाउचर एंट्री आल्सो, आई कैन जस्ट गो टू सेलेक्ट अ गो टू, क्रिएट अ वाउचर, मेक अ एंट्री, and just making a ballpark entry. मैंने एंट्री पास करी, मैंने प्रीव्यू देना है, मैंने प्रिंट कमांड देनी है, मैंने प्रिंट कमांड दी, वाउचर दी, मैंने एस्केप दबाया और मैं वापस अपनी स्क्रीन पे आ। इस पे बताया कि मैंने कुछ अगर मतलब कम बताया हो, मेरे को बहुत कुछ चीजें उसको बताने के लिए, लेकिन सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा नहीं चला। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चेंज इन न्यू टैली एरा, which is the go-to feature. So it gives you a possibility जहाँ आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक साथ कई काम कर सकते हैं। जैसा सर ने बताया पहले आपके पास ऑप्शन थे कि आपको एक से ज़्यादा या तो टाइम ओपन करके देखना पड़ते थे और फिर आप अपना एग्जिट करते थे, बट नाउ आप एक ही टैली में मल्टीपल ऑपरेशन एट ए टाइम आप वो कर सकते हैं। और इस GoTo की एक बहुत अच्छी बात ये है सर कि जैसे आप जब ट्रैवल कर रहे हैं एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट में जब आप जा रहे हैं तो टैली उस पाथ को याद रखता है कि पहले आपने क्या बोला था, दूसरी बार आपने क्या बोला, तीसरी बार आपने क्या बोला और चौथी बार आपने क्या बोला। और जब आप एस्केप करेंगे तो उसी सीक्वेंस में वो पीछे जाता है, वापस आता है। दूसरा, आपने जितनी ओपन रिपोर्ट एक साथ रखी है, आप ओपन रिपोर्ट फीचर को यूज करके आप उनको एक साथ देख सकते हो। जिस भी रिपोर्ट में आप जाना चाहते हो आप क्विकली यू कैन स्विच कि आप ये रिपोर्ट से वो रिपोर्ट में जाना चाहते हो या वो रिपोर्ट से वो रिपोर्ट। मैं सर अपने तरीके से अभी इस फीचर को देखता हूँ कि जैसे आपने इसको गूगल से कनेक्ट किया, दैट यू कैन सर्च एनीथिंग। मतलब पहले हमारे पास ये था कि मान लीजिए मुझे एनालिसिस रिपोर्ट देखना है या कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट मैं देखना चाहता हूँ, तो उस रिपोर्ट को देखने के लिए मुझे पता होना चाहिए था पाथ कि वो कहाँ है, तो डिस्प्ले अकाउंट बुक या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहाँ जाना है। तो कई बार हालांकि जो प्रो यूजर्स है उन्हें तो करते करते याद हो जाता है, बट फिर भी कौन सी रिपोर्ट वर्ड से कहाँ किधर है वो याद रखना वो भी एक काम है। तो अभी GoTo आपके लिए वो फ्रीडम लेके देता है कि आपको जो वर्ड याद है आप टाइप कीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ दैट कैन सर्च इन द लिस्ट एंड गिव यू दैट ऑप्शन कि किस किस रिपोर्ट में कहाँ कहाँ अवेलेबल है पॉसिबल एंड यू कैन। अपार्ट फ्रॉम दैट आप रिपोर्ट से रिपोर्ट में स्विच हो सकते हो, आप ट्रांजेक्शन से रिपोर्ट में स्विच हो सकते हो, आप रिपोर्ट से ट्रांजेक्शन में स्विच हो सकते हो, और आप ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। जैसे आप सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं सर, इफ यू कैन नेविगेट इट मेरे लिए हेल्प हो जाएगा। आप अपनी वाउचर एंट्री यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं सेल्स इनवॉइस, और सेल्स इनवॉइस इन नीड ऑफ सेल्स इनवॉइस आपने कुछ डेटा डाल रखा है, और अब करते करते आपको इमीडिएटली जरूरत पड़ा कि आप अब एक रिसिप्ट भी आपको बनाएंगे पास करने। तो अब इस एंट्री को बनाते हुए आपको इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऑल्ट जी प्रेस करना है सिंपली, और ऑल्ट जी प्रेस करके आपको क्रिएट वाउचर ऑप्शन मिलेगा। If you go to somewhere on GoTo, then you will get an option of create voucher, और यहाँ पे अब आप इंटैक्ट रहेगी और मैं डिफरेंट हाँ सेल्स वाउचर अभी आपका वहाँ रह गया ड्राफ्ट मोड में, एंड नाउ यू शिफ्टेड टू रिसिप्ट वाउचर। और अब आप अपना रिसिप्ट वाउचर जैसे ही कंप्लीट करेंगे टैली में, हाँ तो टैली अब आपको वापस सेल्स इनवॉइस पे ले जाके छोड़ दें जो आप बना रहे थे। मैंने जैसे कि इसके बाद वापस मेरे को सीधे तो दोनों चीज़ें आपके साथ में रहते हैं, आपका सेल्स इनवॉइस भी रह गया एज इट इज, आप उसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, और आपका जो काम था जो पहले करने वाले थे दैट इज ऑल्सो कंप्लीट। तो मैं भी कैसे देखता हूँ कि हाँ सॉरी ये मुझे उनके लिए बहुत अच्छा लगा, तो खास तौर पे यहाँ डायरेक्ट मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके लाइन एंट्रीज होती हैं,
छोड़ के तो रुकने की जरूरत नहीं है वो। हाँ बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। और मैं सर, मेरा वर्जन जैसे आपने इसको गूगल से कनेक्ट किया, मैं इसको किसी और चीज़ से भी कनेक्ट करता हूँ। हम सब लोग ऋषि नारद मुनि का नाम सब लोग जानते हैं और माइथोलॉजिकल आइकॉन है हम सब के लिए। हम लोगों ने काफ़ी पुरानी मूवी या सीरियल्स में हमने देखते आए हैं और उनकी एक कैपेबिलिटी थी, दैट इज सेइंग नारायण नारायण। तो उसका मतलब ये होता है कि जस्ट विजुअलाइज एंड थिंक अबाउट कि उनको कहाँ जाना है, से नारायण, तो जहाँ है वहाँ से गायब हो जाते हैं और जहाँ उनको जाना था वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आई कनेक्ट दिस विद दैट पर्टिकुलर कैपेबिलिटी। जब आपके नारायण नारायण का काम है, आप वो तो क्लिक करो एंड वेयरएवर यू वांट टू स्विच टू, वेयरएवर यू वांट टू गो, आप वहाँ साथ में जा सकते हो। जहाँ आपका काम चल रहा था वो भी एज इट इज चलता रहेगा। इट गिव्स multitask capability and it saves lot of efforts and your time as well, and it keeps things intact। आपकी सारी चीज़ें साथ में हैं और आप उन सब में आप काम कर पा रहे हो। ये अपने आप में बहुत 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 अच्छा फीचर है। जितने कॉम्बिनेशन से जितने एग्जाम्पल्स हम इसके बारे में सोच सकते हैं वो इसमें काम आएगा। और एक जो आपने प्रिंट का एक बताया था कि आप जैसे फिक्स एनालिसिस आप रिपोर्ट ओपन करके आपने रखा था और वहाँ पे से आपने जब प्रिंट कर लेट सभी आप जैसे बैलेंस शीट में और नाउ आपको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट आया कि आपको प्रिंट आउट देना है किसी लेजर या आउटस्ट्रीम स्टेटमेंट का। तो आप रिपोर्ट आपने एक ओपन कर रखा है, आप प्रिंट दूसरी रिपोर्ट का कर सकते हैं। तो इट गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी कि आप एक साथ दोनों काम इजीली कर सकते हैं। तो जो टॉप मेनू है इट गिव्स यू दैट फैसिलिटी। आप देखिए यहाँ पे करंटली पूछता है प्रिंट करते हो, अभी आपके पास रिपोर्ट के पीछे फिक्स एसेट एनालिसिस, बट आपको प्रिंट करना है ट्रायल बैलेंस शीट। तो आप अदर्स पे जाइए और अदर्स में यू कैन सिलेक्ट कि आपको क्या प्रिंट करना है एंड देन यू कैन सिलेक्ट। और वो प्रिंट करने के बाद आप बैक यू कैन कम टू योर रिपोर्ट कि आपको सिंपल बैक या एस्केप आप प्रेस करें और आप आपके रिपोर्ट पे आ जाएंगे। तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, आप डेटा से रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो ऊपर का टॉप मेन्यू है इट हेल्प यू कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो नीचे आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, बस ऊपर के मेन्यू को आप यूज करके साइमल्टेनियसली यू कैन डू ऑल योर वर्क। तो रियली ये मतलब काइंड ऑफ, और मुझे लगा कि अभी जो टैली प्राइम ने दिया है ये हमें हो सकता है नए वर्जन में कुछ और भी फीचर आएंगे, लेकिन इस वर्जन में गो टू इज अ हर्ट ऑफ बेसिकली टैली प्राइम हीरो, यस इट इज एन हीरो। हीरो। कुछ और भी फीचर्स है सर हमारे पास। मैं हमारे को जो लगा मैं काफी यूज करता हूँ इसलिए डेटा एनालिसिस के लिए, वो था हमारा एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन नाम दे दिया। इसका पहले पुराने फीचर का नाम था ऑडिट एंड एनालिसिस, एंड इनिशियली जब तक आप सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल नहीं करते तब तक ये नहीं आता था। जैसे मैंने कहा कि ऑडिटर वर्जन में रेगुलरली होता था, क्लाइंट वर्जन में सबने नहीं था। जैसे हम सीजन वर्जन में जाते हैं ये काफी फीचर्स मैंने भी कुछ लेवल के यूज करने सारे नहीं यूज कर पाता हूँ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, लेकिन ऑडिट के लिए बहुत परफेक्ट है। वाउचर वेरिफिकेशन तो ठीक है, चलिए हम कह देते हैं कि हम सैम्पलिंग करेंगे, इंटरनल ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, आप सैम्पलिंग कर सकते हैं, कितने वाउचर आप सैम्पल करें, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं पूरे कि आपको कैसे सैम्पलिंग मेथड डिजाइन करने हैं, हर वाउचर का वाउचर का सैम्पलिंग मेथड बैन कोड एनालिसिस करना है, इवन वाउचर और वाउचर्स देने हैं, कौन से वाउचर देने, मतलब इतना डिटेल में है यूजुअली। मैं कहूँगा कि आपको इसके लिए ट्रेनिंग स्कूल रेगुलर खोलने पड़ेंगे तब जाके हम इसके सैम्पलिंग यूज कर पाएंगे। नहीं सर, फीचर्स हैं बहुत सारे। आई थिंक शायद लोगों को नहीं पता है कि ये फीचर्स अवेलेबल हैं, बट इफ दे स्टार्ट जस्ट एक्सप्लोरिंग इट एंड यूजिंग इट, इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज। कि आप सिर्फ फीचर को खोलिए और आप जब उस पर एंटर करेंगे ट्रांजेक्शन के, तो पहले चीज़ से पूछ लेता है वेरिफिकेशन करने के लिए। सो जस्ट नीड टू एक्सप्लोर एंड स्टार्ट चीज़ें अब अवेलेबल है। एनालिसिस की जो स्क्रीन पूरा है ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो मैं ये कहूँगा कि अब ये भविष्य में है या प्लानिंग है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन पहले सिर्फ बैकएंड में थी। आज से पहले जब पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक में हमारे इंस्टीट्यूट में गाइडलाइंस दी थी, न्यू ऑडिट प्रोसीजर भी आए, हमारे को कुछ गाइडलाइंस आई कैसे ऑडिट करना है, डेटा रिमूव हो गया, चीजें स्कैन होकर आने लगी, सब कुछ हमारे पास वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस में काइंड ऑफ डिजिटलाइज होकर चल रही है। तो ऐसे में जब अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है, आई कैन गो
start doing an audit directly on the system. That's a really fast moving thing. डॉक्यूमेंटेशन पूरी यहाँ मेंटेन होती है एंड कनेक्टिविटी। मैं जैसे बहुत रेगुलर यूज करता हूँ वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। मुझे यहाँ से पता चलता है कितने लेजर्स में यूज नहीं हुए हैं, ठीक है, कितनों में सिर्फ बैलेंसेस हैं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं, जो यूज नहीं हुए हैं मैं उनको खोल के एक बार रिव्यू कर लेता हूँ कि ऐसे कौन से लेजर्स समा और बीच में बैलेंस के सामने नहीं आ रहे हैं, इनके सामने बैलेंसेस आते हैं, क्या कुछ बैलेंस है क्या नहीं, जिनमें सिर्फ बैलेंसेस हैं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, वो यहाँ आ गए थे, बाकी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, के पास असेट्स के हैं, ऐसा कैसे हो गया कि कोई टीसीएस का अकाउंट है, टीसीएस का अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन। तो बैलेंस शीट ऑडिट के साथ साथ हम ठीक है ट्रेडिशनली हम बैलेंस शीट ऑडिट करते आते हैं, टैली की बैलेंस शीट से जाते हैं और काउंटर लेवल पर प्रिंट आउट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ एक बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, पूरी छोटी सी चीजें अवेलेबल है, ट्रांजेक्शन ऑन हॉलीडे, ठीक है। अब यहाँ इसमें सारी हॉलीडेज की ट्रांजेक्शन के लीडर को, अब मैं अगर रिव्यू करना चाहूँ तो मुझे किसी टीम मेंबर को मैं बिठाऊँ अपने साथ और उसे बताऊँ कि भाई इसमें से सबसे पहले बैंक ट्रांजेक्शन उठा लो, बैंक ट्रांजेक्शन में कॉन्ट्रा एंट्री संडे को कनेक्ट हो सकती है, करेक्ट, दिस इज अ संडे एंड दिस इज अ बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, तो संडे को कैसे हो सकती है, एंट्री अनलेस इट इज अ बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ठीक है। आपने ऑनलाइन बैंकिंग की, आपने बैंक टू बैंक ट्रांसफर करके एटलीस्ट कैश टू बैंक या बैंक टू कैश तो नहीं हो सकता, करेक्ट। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको दिखाई है हमारे पास इम्प्लिसिट एनालिसिस जो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। और भी इसमें दो तीन अच्छी चीजें हैं, रियली ये बड़ा अच्छा है पीरियोडिक पेमेंट्स। पीरियोडिक पेमेंट्स में आप अपने लेजर्स को मैप कर सकते हो कि आपके ऐसे कौन से लेजर्स हैं जिसमें रेगुलरली फ्रीक्वेंसी पे आपकी पेमेंट्स, जैसे मैंने अभी करें रेंट, मुझे पता है रेंट जब मैं दूंगा तो एवरी मंथ मुझे रेंट की आएगी, मेरा पूरी सैलरी भी इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ, मेरे इंटरेस्ट है, मेरे को जब किसी कंपनी को इंटरेस्ट देना है हर महीने किसी क्या, कई बार क्या होता है जब हमारे पास अकाउंटिंग डेटा आता है तो हमारा जो स्टाफ मतलब जो क्लाइंट का जो अकाउंटेंट होता है वो यूजुअली ईएमआई तो बुक कर देता है, उसमें इंटरेस्ट की बुकिंग नहीं करता, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि वो 12 एंट्री आनी चाहिए, 12 टेलीफोन की एंट्री, 12 इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में दिखाई देनी चाहिए, तो कितना ईजिली मुझे दिखाई दे रहा है लास्ट ईयर कंपैरिजन में 1920 में मेरे पे फैक्ट्री रेंट में 24 वाउचर्स थे और इस साल मेरे पे सिर्फ 7 वाउचर, करेक्ट। सो किसी भी टीम मेंबर को सिर्फ ये रिपोर्ट चाहिए, अगर मेरे यहाँ टीम ऑडिट स्टाफ है ऑडिट कर रहा है, उसे अगर फ्रेशर भी है, बहुत ज़्यादा स्किल से बहुत ज़्यादा पास्ट एक्सपीरियंस नहीं भी है और डिफरेंट क्लाइंट का डेटा आ रहा है, तो यहीं से सिर्फ उसे रिपोर्ट से स्मूथ करनी है और पीरियोडिक पेमेंट्स की इम्पैक्ट का कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली और भी है, मतलब एक ये चीज़ बड़ी अच्छी है, रिपीटेड ट्रांजेक्शन, किस अमाउंट की किस लेजर में कितनी बार ट्रांजेक्शन रिपीट हुई, कहीं गलत तो नहीं कर रहा है स्टाफ, कहीं डुप्लीकेशन तो नहीं कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको ये देखा कि बजाज फाइनेंस देखना है, तो मैंने देखा 36,174 की 12 ट्रांजेक्शन है, मुझे लगा शायद ईएमआई नहीं, मैंने खोल के देखा, ओके इंटरेस्ट की एंट्री है, पेमेंट की एंट्री है, एपेरेंटली 6 एंट्री है, 6 इंटरेस्ट है, 6 पेमेंट है, दैट्स फाइन। सो मेरा ये लेजर कवर हो गया, मैं इसमें इसके वेरीफाई कर सकता हूँ कि मैंने ये डन कर दिया, वेरीफाइड है, तो कोई भी टीम मेंबर काम कर रहा है मुझे पता चलता रहेगा मेरा सैम्पलिंग रेशियो क्या चल रहा है, कितनी चीजें वेरीफाई की, एंड स्पेसिफिकली वर्किंग फ्रॉम होम जब मेरे पे सारे डॉक्यूमेंट स्कैन होके आ रहे थे क्लाइंट से, लिमिटेशन भी थी बहुत सारी, ठीक है, ऐसे में ये डॉक्यूमेंटेशन मेरे लिए बहुत काम है। सर और भी है, मतलब ऑडिट में तो बहुत कुछ है, अगर हम देखना चाहेंगे नहीं, इसके लिए तो मुझे लगता है कि हम एक अलग सेशन प्लान कर सकते हैं, स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑन most of our audience will be interested to attend and to utilize this feature definitely. पहले बस ऑडिट एनालिसिस में था, अब आज आपने इसको थोड़ा सा हमारे को लिबर्टी दे दी डिस्प्ले में जाके, और ये हमारे पास ऑडिट एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन का नाम यहाँ आ गया और ये सारी इनफैक्ट आपको नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, आप यहाँ से जाएं, गो टू पे जाएं और आप कहीं पीरियोडिक पेमेंट्स देखनी है, यहाँ से पीरियोडिक पेमेंट्स देखनी है, आप उसी रिपोर्ट में वापस आ जाएंगे। So that's the point I thought कि मुझे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस, अपने जो मेंबर्स थे हमारे साथ लेना वैल्यूएबल टाइम निकाला है, तो मुझे लगा ये कुछ बेसिक चीजें जो हम डिस्कस करें, very very informative. So let me take more 5 or 10 minutes to cover a few things
related to crime. Yeah, yes. If you can Yeah, stop I'm sharing sure. your screen share. So sir, my screen is visible to you? Yes, sir. राइट, थैंक यू। तो जैसा सर ने आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी बता दी, कवर कर दी अबाउट इट। I have a few quick things to show you about the Tally Prime good thing. First thing is when you want to create a new company, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं और Tally में हमने एक नई कंपनी क्रिएट किया टेक्स में फ्लिपकार्ट ट्रेडिंग कंपनी में नया क्रिएट किया और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे इंटेलिजेंस है जो आपको कई जगह देखने को मिलेंगे काम करते वक्त। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो एक्सपीरियंस देखिए, अरे इसमें ये भी हो रहा है, सो दैट वुड बी वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो आई टेल यू वन एग्जांपल है, जैसे मैंने पहले सिलेक्ट किया तो आप देखते हैं कि कंट्री और करेंसी जो है इंडिया के हिसाब से होते हैं चेंज, लाइक दुबई, अब देखिए उसका टर्मिनोलॉजी कंट्री करेंसी ऑटोमेटिकली चेंज हो। So the intelligence has been built there. And one thing here, यहाँ जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के बाद आपको टैली सीधा फीचर्स पे लेके जाएगा कि आप क्या क्या फीचर्स इस पर्टिकुलर कंपनी में एनेबल करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। तो जो यूज़र है जो सेटअप कर रहे हैं फर्स्ट टाइम या नया कंपनी बना रहे हैं तो उसके लिए ईजी प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस के साथ काम कर रहा है और चल रहा है कि अभी टैली में कंपनी क्रिएट कर दिया, अभी मुझे इसमें जीएसटी एनेबल करना है, टीडीएस एनेबल करना है, वॉट एवर फीचर्स यू विश टू एनेबल, और वो एनेबल करके मैं इंडियन स्टार्ट किया। तो ये एक चेंज है, एक बड़ा इजी वे है करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने जैसे सर ने मैनुअल बता दी कि आपको क्या प्रिंट और ये सब इसमें कर सकते हैं इसको, और डेटा से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन हैं, बैकअप रिस्टोर आप कर सकते हैं, डेटा स्प्लिट कर सकते हैं, और बैकअप और रिस्टोर में आप कैपेबिलिटी है कि आप मल्टीपल लोकेशन का बैकअप एक साथ ले सकते हैं, जैसे आपके फाइल के डेटा अलग अलग फोल्डर में, बिकॉज अब डेटा पाथ जो है पहले का नया है, पूरा चेंज हो गया है, तो आप बैकअप रिस्टोर दोनों काम जो है ना मल्टीपल लोकेशन पे आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और वंस यू हैव क्रिएटेड योर कंपनी, तो अब आपके पास मल्टीपल मेन्यूज नहीं है क्रिएट और अल्टर और मॉडिफाई करने के लिए। इससे पहले अकाउंटिंग से एंट्री होता था, पेरोल होता था, अभी वो सब कुछ क्रिएट है, व्हाटएवर यू वांट टू क्रिएट आप जस्ट यहाँ पे टाइप कीजिए और आप वो क्रिएट कर सकते हैं। मुझे गो डाउन क्रिएट करना है, जस्ट एंटर सिलेक्ट गो डाउन एंड क्रिएट, और जो फीचर एनेबल नहीं होगा वो यहीं से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जस्ट प्रेस एंटर उसके ऊपर और आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो शो मोड आपने किया, शो एंड एक्टिव किया, और जो भी एक्टिव चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगी और आप यहीं से उनको आप एनेबल करके ऑल्टर इज अगेन अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ गूगल। जब आप किसी भी मास्टर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप एक ही स्क्रीन से एक ही व्यू से आप किसी भी मास्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं। वेदर इट इज अ पार्टी, जैसे मुझे अल्फा प्रोविजन ऑल्टर करना है तो मैं लेजर में जाऊँ और फिर ऑल्टर करूँ, ऐसा जरूरत नहीं, सीधा अल्फा टाइप किया, अल्फा का लेजर आ गया, आई कैन चेंज। मुझे कोई गोडाउन को चेंज करना है तो सीधा गोडाउन टाइप करूँगा, उस गोडाउन का एंटर करूँगा और मैं गोडाउन करूँगा। तो अगेन दिस इज चेंज द एंटायर chart of account will help you to see the entire list of all your masters। तो आप जैसे लेजर देख रहे हैं, कॉस्ट सेंटर देखना चाहते हैं, स्टॉक आइटम देखना चाहते हैं, whatever you want to see in a list कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो पूरा लिस्ट आप यहाँ से एक साथ देख सकते हैं। इसमें मैं सॉरी आपको इंटरफेयर करूंगा, आप वापस से चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएं। इसमें एक बहुत अच्छी चीज आई है, आप यहाँ साइड में लेटेस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे, F5 ये। सर अभी तक जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट से नोट करते थे लेकिन उसमें वो एक लिस्ट आ चुकी थी, टैबुलर डेटा नहीं आता था मेरे पास, लेकर मेरे को देखना है कि कौन सा लेजर किस व्यू खुला है और उसकी बेसिक डिटेल्स क्या है, तो ये एक टैबुलर डेटा जो यूजुअली हम कई जगह हम कहीं तो ओरेकल सैप या बड़े सॉफ्टवेयर में टैबुलर डेटा चलता है हमारे पास, तो ये समारोह मेरा जो मास्टर डेटा था, जो लिस्ट ऑफ लेजर्स था, वो इस फॉर्मेट में टैली पे मिसिंग था और हमें कहीं ना कहीं
वो एड-ऑन्स के थ्रू या फीचर्स के थ्रू हमने कस्टमाइज करा के ले रखा था। So this is now a very good चीज मेरे को लगा कि मैं आपको थोड़ा सा दूंगा। Thank you, sir. Thank you very much. And one more thing related to reports. अभी पहले जब आप रिपोर्ट्स पे जाते थे तो समझे लेजर वाउचर्स मैं देखना चाहता हूँ, जैसे पार्टी का लेजर मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कई बार इस रिपोर्ट को चेंज करने के लिए SQL में कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। तो देयर वुड बी अ लिस्ट ऑफ ऑल फीचर्स जिसमें यस नो करने की जरूरत है। Now to do a structured the entire setting things, जो हर एक यूजर को अब आगे से इजीली समझना है, नेविगेट करना, डिस्प्ले करना आसान हो जाए और इंट्यूनेस बन जाए, उसके लिए टैली ने वो सारे ऑप्शंस को 3 बटन में कैटेगराइज किया। आप राइट हैंड साइड पे देखिए तो बेसिस ऑफ वैल्यू, चेंज रूट एंड एक्सेप्शन। तो बेसिस ऑफ वैल्यू पे आप एक क्लिक करेंगे तो आप चेंजेस कर सकते हैं, क्या आप ओपनिंग बैलेंस खाते लिखना चाहते हैं, क्या आप सिर्फ डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखना चाहते हैं, क्या आप पोस्ट रिपीट वाउचर्स आप लिखना चाहते हैं, क्या। तो इस तरह के चेंजेस आप बेसिस ऑफ वैल्यू से आप अपने कर सकते हैं। चेंज यूजर यू कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, क्या आप कॉलमर लेजर देखना चाहते हैं, क्या मूवमेंट एनालिसिस देखना चाहते हैं, या शो वो करेंगे तो क्या इसका पेमेंट परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, सेल्स बिल मेट्रिक देखना चाहते हैं, मूवमेंट एनालिसिस। तो आप यहीं से बैठे बैठे इस पार्टी को आपको कौन सी आइटम अभी तक बेची है, कितना क्वांटिटी बेची है, वो आप रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। और तीसरा है एक्सेप्शन। तो इस पार्टी से रिलेटेड एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या है जो आपको शुड बी ब्रिंग्स अटेंशन टू। तो ओवरड्यू रिसीवेबल्स है क्या, ओवरड्यू पेबल्स है क्या, कोई फॉरेन लॉस है इसमें, ऑप्शनल वाउचर आपने बना रखा है, या पोस्ट डेटेड वाउचर है, या मेमोरेंडम ट्रांजेक्शन आपने बना रखा है। So all those exception things related to this particular account that you can quickly see that. और अब माउस के जो यूसेज हैं, नाउ इट इज वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड विद प्राइम। और यदि आपके माउस में जैसे स्क्रॉल बटन होता है, स्क्रॉल, तो आप इजीली अप एंड डाउन इसमें स्क्रॉल कर सकते हैं। सिलेक्शन अब आसान हो गया, यदि आपने शिफ्ट प्रेस करके रखा और आप डाउन की एरो प्रेस करेंगे तो यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल लाइन ऑफ आइटम्स, मल्टीपल मास्टर्स के लिए और डिसलेक्ट क्विकली। और जो कॉपी एंड पेस्ट कमांड था पहले हम कंट्रोल अल्ट सी यूज करते थे, और वो नॉर्मल विंडो की तरह जो कॉमन कमांड है कंट्रोल सी और कंट्रोल भी आप यूज कर सकते हैं, और साथ में जो पुराना कमांड था वो भी यूज कर सकते हैं। दोनों आपको whichever you think right आपको याद आ रहा है आप यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मली कोई नया यूजर है वो पहली बार यूज कर रहा है तो उसको विंडोज की आदत होती है कंट्रोल सी से कॉपी करना, कंट्रोल से पेस्ट करना। और नेविगेशन से रिलेटेड रिपोर्ट में एक फीचर है विच इज लास्ट थिंग, जैसे बैलेंस शीट में हम जानते हैं और करंट एसेट्स में डेटर्स का लिस्ट निकालना है, मंथली स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट है। तो क्या अल्फा प्रोविजन का मंथली स्टेटमेंट अभी देखना है। अब नेक्स्ट पार्टी का मंथली स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ तो मुझे बाहर आके दूसरा पार्टी सिलेक्ट करने की डैशबोर्ड में जाके और लेजर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपके कीबोर्ड पे जो प्लस का बटन है वो आप प्रेस एंड एबल टू सी नेक्स्ट पार्टीज मंथली तो या प्रेस करेंगे तो अब पीछे की पार्टी का आप ऐसा तो यूजुअली पहले हम ये डेमो में यूज करते थे। हाँ इसी तरीके से आप यदि वाउचर मोड में है, ट्रांजेक्शन लेवल पे आप रिपोर्ट में है, तो आप देखिए अभी मैं अप्रैल का ट्रांजेक्शन लिख देता हूँ फॉर अल्फा प्रोविजन। आई विश टू सी कि अगले मंथ के ट्रांजेक्शन में इसको देखूँ, तो वही प्लस बटन आप यूज कर देंगे। आप देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, जैसे आप देख सकते हैं। एंड व्हेन यू प्रेस माइनस यू विल रिवर्स बैक। तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो नेविगेशन ऐड किए शॉर्टकट्स के लिए हेल्प यू टू execute things quickly, and there are lot many things to explore in this new brand. It is more easy, more fluent, more quick, and with a fresh look, new technology. It gives you altogether a new experience. And my learning is that when you start using this, you will not be looking back previous. आप पुराना को देखना बंद कर दो। So I request you to, after this session, you can connect with the team of Tally, with the partners, respective partners, and you can take them help कि आप अपना Tally migrate करके
और उसके डेटा को माइग्रेट करना चाहते हैं, हम डेटा माइग्रेट करके यूज़ करना चाहते हैं एज ए टैली। हम लोग ऑलरेडी पिछले 15 दिनों से अपना सारा डेटा माइग्रेट कर चुके हैं सक्सेसफुली। वी आर यूजिंग इवन कई सारे हमारे पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे हैव ऑलरेडी migrated to Prime and they are successfully there are questions I can see Jatin ji का question है, do we have user accessibility control group tools? यहाँ पर accessibility tools can be and table reports can be accessed by a manager। जी जतिन जी, आप राइट्स बना सकते हैं अलग अलग और हर यूजर के साथ उसको टैग कर सकते हैं, और जिसको भी आप रिसीवेबल रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एक्सेस सेटअप। और दूसरा क्वेश्चन है मिस्त्री है रुक्षाना मिस्त्री, सॉरी आई एम रॉन्ग। When you consolidate the accounts of group companies, how are common entries accounts shown WRT to profit and loss and balance sheet items? Any common contra entries displayed separately? सर इसको आप देना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई क्वेश्चन होता है कि जैसे मेरा हेड ऑफिस और ब्रांच है, मैंने हेड ऑफिस से सेल करी ब्रांच को, ब्रांच से मेरे को पेमेंट आई, तो जो वो बेसिकली मेरी इंटर एंट्रीज है, इंटर ब्रांच इंटर यूनिट जो एंट्रीज है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन वो है कि उस इंटर ब्रांच एंट्रीज को कैसे हम, क्या वो सेपरेटली रिफ्लेक्ट होती है। तो यूजुअली तो वो सेपरेट रिफ्लेक्ट नहीं होती क्योंकि वो हर एंटिटी का अपना एक वाउचर टाइप अवेलेबल है टाइप पर। मैंने जो पेमेंट यूज करा होगा, सामने एंटिटी ने रिसीट यूज किया होगा, बट इसके लिए टैली ने एक बेनिफिट जो मुझे दिया है वो है कि हम ब्रांच और डिविजन्स में उस अपने लेजर को मेंटेन करते हैं। जैसे हेड ऑफिस में ब्रांच का, मैं ब्रांच डिवीजन को बोल देता हूँ, और जब ब्रांच को होती है हेड ऑफिस का लेजर तो ब्रांच डिवीजन। जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो कंसोल में वो दोनों को लेकर सामने नलिफाई दिखाते हैं। Sir, one anonymous question is that if there is option in audit and analysis to make unsecured loans report to 69 access, this will be very useful. तो लोन की रिपोर्ट्स तो अवेलेबल हैं इसमें कि हमारे पास कुछ, जैसे इसमें जब हम ऑडिट एनालिसिस में गए थे तो हमारे पास एक डेटा था पेंडिंग एडवांसेस। अब फ्रैंकली स्पीकिंग हमने भी बहुत ज़्यादा यूज अभी नहीं किया पेंडिंग एडवांसेस को, बट आई थिंक सब कुछ रिपोर्ट्स हम उससे वहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं। So we'll prepare a session on that. इसमें फिर सर इसको ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कवर। Vinod ji is asking multi GST option where I can choose voucher to company based on state और GST। तो सर विनोद जी, यदि आपके मल्टी GST हैं तो राइट नाउ टाइम में वो डिफरेंट कंपनीज क्रिएट होती हैं और उनको आप ग्रुप कंपनी में यदि कर देंगे तो आप उन ग्रुप कंपनी में देन यू कैन पोस्ट वाउचर्स बाय सिलेक्टिंग स्पेसिफिक कंपनी। तो कंपनी मेनू, अब प्राइम में आपको कंपनी मेनू किया है चाहिए, जब आप टेबल में जाते हैं या ग्रुप में जाते हैं तो ऊपर सबसे ऊपर कंपनी आता है, यू कैन सिलेक्ट किस कंपनी में आप वाउचर पोस्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज पॉसिबल, दैट यू कैन डू। मिस्त्री जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी एडिशनल प्रोविजंस फॉर डेटा फ्रॉम Excel to Tally? So right now it is as equivalent which was earlier in Tally RPM, but definitely Tally is working upon it to give you more options to do import from various options or export also. Venu Gopal ji asking, I understand, but the question can you make it visible? It is related to some answered question. Is this session recorded? Yes, it is recorded, sir. Anonymous question is, do we need features to maintain revenue and data region wise as well as business vertical wise? So I understand this, दीपक जी, हम ग्रुपिंग के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हैं ना, जो अलग अलग रीजन के ग्रुप बना के उनके अगर हम डेटा को क्लासीफाई करेंगे या उनके बिजनेस वर्टिकल के हिसाब से उनके ग्रुपिंग करके देन वी कैन एक्सट्रैक्ट द रिपोर्ट्स अकॉर्डिंगली, राइट? Venugopal ji asked, where to set up previous period in the periodic payment report? Previous period
पीरियडिक पेमेंट रिपोर्ट में आई गेस हमें सिर्फ लेजर को सिलेक्ट करना होता है एंड टैली अंडरस्टैंड कि आप मंथली या तो करते होंगे उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन या क्वार्टरली करते होंगे, तो विच एवर इज द मोड आपको रिपोर्ट में काउंट पता चल जाएगा कि आपने क्वार्टरली किया है तो 4 का वाउचर्स हैं या आपने डेली मंथली ट्रांजेक्शन हैं तो देयर आर 12 वाउचर्स। आई हमारे मेरा डेटा, हाँ, मेरा डेटा जो था वो मेरा डेटा 2 साल में कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, तो मैं लास्ट ईयर का कंपैरिजन उसी रिपोर्ट में ले लिया था। Okay. So if you want to compare with your previous data, then you can load that company और आपको ऊपर compare company का बटन दिखता है जिसको यूज करके कंपनी में आप कैन इसमें कंपेयर अनदर कंपनी ऑल्सो द प्रीवियस पीरियड अकाउंट। और पीरियडिक पेमेंट वेरिफिकेशन टू बी डन टू ओपन 2 years कंपनी साइमल्टेनियसली और 2 years सेपरेट डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी। दोनों ऑप्शन है उत्तम कुमार जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा आपका यदि एक ही कंपनी है जिसमें दोनों फाइनेंशियल का डेटा है वो भी काम करेगा, और यदि आपने स्प्लिट करके रखा है तो आप दोनों कंपनियां लोड करके कंपेयर करें। विनोद जी ने पूछा कैन आई कंट्रोल मास्टर क्रिएशन फंक्शनलिटी बेस्ड ऑन प्रॉफिट बेस्ड एज डन इन अर्लियर वर्जन। I'm not able to understand, but if it is available in the previous version, which is Tally RP9, तो definitely आप यहाँ पे कर सकते हैं। How to compare periodic payment from this quarter to this quarter? Yes, previous quarterly comparison तो इसमें नहीं होगा periodic payment में। वो जो पूरे साल का आप रिपोर्ट देखते हैं ऑडिट के टाइम पे, that you are comparing के पूरे साल में टोटल कितने ट्रांजेक्शन हैं। दीपक जी ये ठीक है? हाँ। Deepak, just Arvind here. Just 1 second. Somehow the organizer has stopped my video. I am not in a position to put it on. That's okay. But how many of your questions we'll answer, we'll continue to answer as much time permits. But in case if you are not in a position to do that, every question is noted down. Every question will be answered, and all the participants will be sent with the thank you mail, all the questions which were done and all the answers and opinions what we have on the subject. So it will reach everyone. In case a couple of questions are missed for whatever reasons, let us not worry about it. Every question will be answered and sent to all of them in writing. Right, sir. Please carry on. I am not in a position to switch on my video for whatever reasons. You please carry on, Deepak. Thank you, sir. No problem. Yeah, so sir, as sir said, we will take 10 minutes more. As much as possible, we try to cover the questions. And if there is left, then definitely we will take it by two. Manu Gopal ji, any solutions, a suggestive point that what are care to be taken before migration? Things need to be migrated and checked. Yes, if you are using any PBL, definitely you need to get connected with your partner first, get it converted and checked, then migrate. So I just want to precisely to Venu sir only. Venu sir is a master of the software programming. He does a lot of work on Tally. But nevertheless, Venu sir, I want to share my understanding about your question. So there are a lot of TDLs done in the earlier records. Is it going to change? With my understanding, sir, I have tested around 20 TDLs. None of them have needed any change. In my understanding, in my infant understanding of the TDL, you will have two blocks of TDLs which will work. One is about the front end, which is about the names what we have given. For example, the gateway of menu items. Other is the data as such, the database as such. In my mind, sir, whatever things that your TDL has undergone as far as the database is concerned, absolutely there is no change at all in my mind, because in my test all 20 have come through. In terms of some of the gateway presentations, linking your file to the name, for example, today the gateway is changed, the presence is changed, so you may have to do some small tweakings here and there. It should not take more than 10-15 minutes for a programmer. So basically, the look and feel changes. In case there are some, you may have to change. But as far as the database is concerned, the functions, the names which you have given, variables which you have designed, you continue to do the same thing. You don't have to worry. In my sample, 20 of 20 TDLs have started working comfortably. Have I taken the courage to answer your question, Venu sir? Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. I think Deepak will go ahead. So most of the questions I have seen, it is related to either TDL or synchronization or audit related reports. So we'll take them one by one and reply with the email so that others' time is also important and we
restriction of time, it's not the right thing to address in this forum to address. Sir, one question I would like to take. Sorry to interfere. While actually reading, there were lot of questions are coming continuously. So one question just put in my front that was put up by Shubham. That can we maintain a proper interest calculation in the bank only account? Sir, I correlate this with sir that starting with is it not only so much? He gave the sentence and I just wrote down and tried. The reason why I say so is approximately 10 years back when the interest calculation was there in Tally. Usually it was done on the date of the vouchering. And I was doing my interest calculation for my client for a bank OTP and was realizing that Tally is not supposed to have a interest calculation on the basis of the bank reconciliation, not on the basis of the voucher. So I thought and I immediately got online and submit a suggestion to the Tally solution. Surprisingly, after 13 or 14 months, I got a thank you mail from a Tally Solutions. That thank you, your suggestion noted earlier has been now incorporated in the new version. So yes, there is the interest calculation on the bank reference page. You can just go and activate that. So thank you, sir. I guess most of the questions are related to real and same things which need to be taken care either one-on-one or with the help of partners so that we can help you in detailing that particular thing. So for this session, I hope that you will be able to see the